ذیابیطس۔ ذیابیطس یا ڈائبٹیز میلائٹس ایک بہت عام مرض ہے اور اندازہ ہے کہ پاکستان میں 10% لوگ اس کا شکار ہیں۔ 10% کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان کی آبادی 18 کروڑ ہے تو 1 کروڑ 80 لاکھ لوگوں کو ذیابیطس کا مرض ہوگا۔ کسی بھی مرض کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے متعلقہ جسم کے اعضاء کی ساخت اور ان کے افعال کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ذیابیطس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ ایک انسان ہے جو کہ میں کوشش کر رہا ہوں بنانے کی، اور یہ انسان کا منہ ہے اور اس کے بعد پھر خوراک کی نالی، اور خوراک کی نالی جو ہے وہ پھر اس کے بعد معدے میں گئی، اور معدے سے یہ آنت میں آ گئی، اور یہاں پر جگر یعنی لیور پڑا ہوا ہے، اور جگر کی نالیاں جو ہیں وہ آنتوں میں آتی ہیں۔ اچھا، تو خوراک جو ہے وہ منہ سے معدے میں آئی، معدے سے آنتوں میں گئی اور یہاں پر خون میں جذب ہو گئی، لیکن اس کو ہضم ہونے میں مدد دینے کے لیے جگر نے اپنے رطوبتیں نکالیں، اور یہاں آنتوں کے بیچ میں ایک خدود پڑا ہوتا ہے جس کو لبلبہ کہتے ہیں، یعنی پینکریاز، اور لبلبے نے بھی اپنی رطوبتیں جو ہیں وہ آنتوں میں ڈالیں۔ یہ جو میں بنا رہا ہوں ڈائیگرام، یہ انیٹومیکلی درست نہیں ہے، لیکن یہ کانسیپچولی یعنی آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آسان کر کے بنائی ہے۔ اس طرح سے نہیں ہوتا، یہ نالی یہاں پہ کھلتی ہے، لیکن باہر اب جو خوراک ہوتی ہے انسان کی، اس کے 3 بڑے اجزاء ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کاربوہائیڈریٹس، جس کو اردو میں غالباً شکریات کہا جاتا ہے۔ یہ چینی کی اقسام ہوتی ہیں، کئی طرح کے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جس میں نشاستہ ہے، عام کھانے کی چینی ہے، گلوکوز ہے، پھلوں میں جو مٹھاس ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹس کی وجہ سے، آٹا وغیرہ یہ سب کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ اس کے علاوہ پھر خوراک میں فیٹس ہوتے ہیں، یعنی چکنائیاں، جیسے جانوروں کی چربی یا دودھ کے اوپر آئی ہوئی ملائی وغیرہ، اور پھر پروٹینز ہوتی ہیں، اور پروٹینز جو ہیں ان کو اردو میں شاید لحمیات کہا جاتا ہے۔ یہ گوشت، انڈا، یہ جانوروں سے عام طور پہ حاصل کی جاتی ہیں، لیکن دالیں وغیرہ اس میں بھی پروٹینز ہوتی ہیں۔ اب جو خوراک انسان کھاتا ہے وہ معدے میں پہنچتی ہے، اور معدے سے جب آنتوں میں پہنچتی ہے اور آنتوں سے جب ہضم ہو کے خون میں جاتی ہے تو لبلبہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس میں کتنی چینی ہے، اور سب سے اہم چینی جو جسم میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گلوکوز۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جی میری شوگر بڑھ گئی، میری شوگر کم ہوگی، اصل میں وہ شوگر جو ہے وہ گلوکوز ہی ہوتی ہے۔ تو گلوکوز کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں خون کی شوگر بڑھ گئی، کم ہو گئی، یا پیشاب میں شوگر آ رہی ہے۔ تو لبلبہ جو ہے وہ گلوکوز کو دیکھتا ہے کہ خون میں کتنا گلوکوز آیا ہے، اور پھر اس جتنا گلوکوز خون میں آیا ہوتا ہے اس کے مطابق ایک ہارمون نکالتا ہے
जिसे इंसुलिन कहा जाता है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन जिस्म में गुदूदों से निकलने वाली एक रतूबत होती है। ये जिस्म को हिदायत देते हैं हार्मोन कि ये काम करो और ये काम ना करो। मिसाल के तौर पर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ये जब लड़कों में निकलता है तो ये जिस्म को हुक्म देता है कि दाढ़ी मूछें जो हैं वो उगाओ और बलूगत की तरफ अब जिस्म को ये भेज देता है। तो इसी तरह से इंसुलिन भी एक हार्मोन है और ये जिस्म को हुक्म देती है इंसुलिन कि तुम किफ़ायत शारी करो। किफ़ायत शारी से मुराद ये है कि खाने की जो चीज़ें अब खून में आ गई हैं उनको ज़ाया ना करो बल्कि संभाल के रखो। तो इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाइयाँ और प्रोटीन, इन तीनों को जिस्म में महफूज करती है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये जिस्म के खलियात यानी जिस्म में जो सेल्स होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसमें महफूज हो जाती हैं इंसुलिन की वजह से। तो अब देखें कि अगर ग्लूकोज खून में है यानी शुगर खून में है और अगर वो इंसुलिन की वजह से खलियात में चली जाए तो खून में उसकी मिक़दार कम हो जाएगी। और अगर इंसुलिन ना हो तो ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर यानी खलियात के अंदर नहीं जा सकता। इसकी वजह से खून में ग्लूकोज की मिक़दार ज़्यादा रह जाएगी, जिसे कहते हैं कि शुगर हाई हो गई। अब इसी तरह से अगर इंसुलिन के जिस्म में कमी हो तो फिर जिस्म प्रोटीन को भी नहीं संभाल के रख पाएगा, चिकनाइयों को भी संभाल के नहीं रख पाएगा। तो उसकी वजह से इंसान, क्योंकि चिकनाइयाँ और प्रोटीन जो हैं, चिकनाइयाँ आमतौर पर जिस्म को मोटा करती हैं तो इंसान कमज़ोर हो जाएगा और प्रोटीन जो है उससे पट्ठे वगैरह बनते हैं, हड्डियाँ बनती हैं, तो जिस्म कमज़ोर हो जाएगा अगर इंसुलिन उसको संभाल के ना रख पाए। इंसुलिन के इसके अलावा भी बहुत से काम होते हैं लेकिन हमारे लिए ये इसका बुनियादी काम जो है ये काफ़ी है। अच्छा, अब आते हैं कि इंसुलिन का हमने आपको बताया कि किफ़ायत शारी करती है जिसको एनाबॉलिक हार्मोन है ये। अच्छा, अब आते हैं कि ज़ियाबीतिस है क्या, यानी डायबिटीज़ है क्या चीज़। तो डायबिटीज़ में यह होता है कि इंसुलिन के जो काम होते हैं वो नहीं हो रहे होते, यानी इंसुलिन ने जो काम जिस्म में अंजाम देना है यानी खुराक को संभाल कर रखना वो नहीं कर पाती। तो उसकी वजह या तो ये है कि इंसुलिन जो यहाँ लबलबे से यानी पैंक्रियास से निकल रही है वो जिस्म के लिए थोड़ी है। अगर वो थोड़ी है तो ज़ाहिर है उसका काम पूरा नहीं होगा। और फिर ये भी हो सकता है कि लबलबा बेचारा तो पूरी तरह से इंसुलिन निकाल रहा है लेकिन इंसुलिन जो है वो जिस्म उसको उसकी हिदायत मान नहीं रहा। और ये जो है ये दो ही वजह होती हैं ज़ियाबीतिस की। तो पहली वजह जिसमें कि लबलबे ने इंसुलिन निकालनी कम करती है या बंद करती है उसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, यानी पहली किस्म। इसमें इंसुलिन कम निकलती है। और दूसरी किस्म जो होती है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। इसमें इंसुलिन की हिदायत
जिस्म नहीं मानता। अब जो पहली किस्म है इसकी डायबिटीज़ की, ये बहुत कम लोगों में होती है और आम तौर पर ये बच्चों में या फिर जो लड़के लड़कियां होते हैं 18 साल से कम उम्र के, उनमें आम तौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। और जो टाइप 2 है इसकी दूसरी किस्म डायबिटीज़ की, ये बहुत ज़्यादा आम बीमारी है और ये आम तौर पर 30-35 साल के बाद की उम्र में होती है और इसमें इंसुलिन तो लबलबा बहुत ज़्यादा निकाल रहा होता है, लेकिन जिस्म उसकी हिदायत पर अमल नहीं कर रहा होता। और ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये आम तौर पर मोटे लोगों में होती है। अब ये कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन क्यों कम निकलती है, तो इसकी सही वजह तो नहीं मालूम, लेकिन ये अंदाज़ा है कि जो जिस्म में मुदाफ़ियती निज़ाम है वो जाकर लबलबे को तबाह कर देता है। मुदाफ़ियती निज़ाम असल में जरासीमों से, बुखार वगैरह से लड़ने के लिए होता है, लेकिन अगर ये अपने जिस्म के ही ख़िलाफ़ काम शुरू कर दे तो उसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं, यानी मुदाफ़ियती निज़ाम, यानी जैसे कोई फ़ौज अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत कर दे। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसमें क्यों जिस्म इंसुलिन का कहना नहीं मानता, इसकी वजह ये होती है कि जो मोटापा होता है उसमें जो चर्बी होती है, अंदाज़ा ये है कि वो इंसुलिन के ख़िलाफ़ काम करती है और जिस्म को इंसुलिन की बात नहीं मानने देती। इसी वजह से अगर टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ अपना वज़न कम कर लें तो अक्सर उनकी शुगर ठीक हो जाती है। तो मोटे लोगों का जिस्म सिर्फ इंसुलिन के ख़िलाफ़ ही बगावत नहीं करता, बल्कि वो ब्लड प्रेशर को भी नहीं ठीक रख सकता और उनका ब्लड प्रेशर भी बड़ा होता है। फिर मोटे लोगों का जिस्म जो चर्बी है उसको भी आम तौर पे जिगर में चर्बी जाती है जब हम खाना खाते हैं, लेकिन उसके बाद जिगर से बाहर निकल आती है। लेकिन मोटे लोगों का जिस्म चर्बी को जिगर से बाहर भी नहीं निकालता और ऐसे लोगों के जिगर में चर्बी इकट्ठी रहती है। और फिर अगर ख़वातीन जो कि मोटी हों, उनमें से कुछ को जो ओवरी होती है, यानी जहाँ पर बैज़े यानी एग्स बनते हैं ख़वातीन के, उनको भी मोटा जो जिस्म होता है वो कुछ इजाफ़ी कामों में लगाए रखता है, जिसके नतीजे में ओवरीज़ में, बैज़ादानियों में सुराख बनते जाते हैं। अगर ये ओवरीज़ है तो उसमें इस तरह के कई सुराख होंगे जिसको कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ कहते हैं। और इनकी जो ओवरीज़ होती हैं वो ख़वातीन के अंदर कुछ और तरह के हार्मोन्स निकालती हैं, जिसके नतीजे में उनके चेहरे पर इजाफी बाल उगाते हैं और कभी कभार ख़वातीन को माँ बनने में दुश्वारी भी पेश आती है। ये मर्ज़ भी पाकिस्तान में बहुत आम है और अक्सर ऐसी ख़वातीन को डायबिटीज़ भी होती है। तो इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिज़ीज़।